हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। यू टू, गुड इवनिंग। सर। गुड इवनिंग। आवाज आ रही है सबको? यस सर। चलिए स्टार्ट करते हैं। यस, प्रोबेबिलिटी में है प्रॉब्लम्स। यस, कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 161। ठीक है। वन 173। वीडियोस ऑन करो। कौन सा? 167। If x follows a binomial distribution with parameters n is equal to 6 and p and 4 times p of x is equal to 4 is equal to p of x is equal to 2, then p is equal to we have to find. ठीक है, शायद मीनिंग समझ में नहीं आया होगा प्रॉब्लम का। अदरवाइज द प्रॉब्लम इज वेरी सिंपल। n का वैल्यू 6 है, 4 टाइम्स प्रोबेबिलिटी व्हेन x is equal to 4, p of x is equal to 4 is equal to p of x is equal to 2. That means 4 times 6 c4 p raised to the power 4 q raised to the power 2, which is 1 minus p. So 2, which is equal to 6c2 into p raised to the power 2 into 1 minus p raised to the power 4. This is what we have to solve. हो रहा है सॉल्व आगे? ठीक है, करूं मैं आगे? नेक्स्ट 170। सॉरी तन्मय सर, सॉरी सर 168। 168. The records of a hospital shows that 10% of the cases of a certain disease are fatal. If 6 patients are suffering from the disease, then the probability that only 3 will die. तो fatal होने की probability हो गई 1/10 और नहीं होने की 9/10 हो गई। 6 में से 3 will die, so 6c3 1/10 raised to the power 3 into 9/10 raised to the power 3. That's it. Yes sir, हो जाएगा। Next 168 after 168 173 173. 5 coins whose faces are marked 2 and 3 are tossed. The chance of obtaining a total of 12. 5 coins whose faces are marked 2 and 3 are tossed. Only 2 and 3 are there और 5 coins हैं। 5 coins, 2 and 3 are marked. हमें टोटल चाहिए, टोटल ऑफ 12. टोटल शुड बी 12. केसेस बनाए क्या? टोटल शुड बी 12, 5 कॉइन्स। ठीक है, नीचे तो देखो टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हो जाएंगे, 2 raised to the power 5 है ना, और टोटल उनका सम 12 आना चाहिए। तो ऐसे 5 कॉइन्स लेने जिनका सम टोटल 12 आ जाए। बोलो केसेस क्या बनेंगे?
सॉरी 2,2,2,3,3. Yes. Anyone else? Any other case? Of course they have to be arranged, है ना, इसके अलावा तो और कोई केस पॉसिबल नहीं है. ठीक है, टोटल 12 आ गया. Now 5 things are to be arranged in a line such that 3 are identical of one kind, 2 are identical of second kind. So the number of cases would be factorial 5 divided by factorial 3 into factorial 2, which is equal to 5 into 4. उससे कट जाएगा, 2 कट जाएगा, 10 आ जाएगा. ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हो कि 5C2 यानी 2 प्लेस पे हमने 3 डाल दिया, 3 प्लेस पे 2 डाल दिया, वन एंड द सेम थिंग. सो 10 डिवाइडेड बाय 2 raised to the power 5. चेक करो क्या आंसर है. नेक्स्ट 176. 176. A dice tossed 5 times, getting an odd number is considered a success. Then the variance of distribution of success, NPQ. NPQ निकालना है. Binomial distribution लगेगा. Dice tossed 5 times, getting an odd number is considered a success. Success आने की probability कितना हो गया? 1/2 हो गया. 3/6 means 1/2. Q भी 1/2 हो जाएगा. N का वैल्यू 5 हो गया. ठीक है. Then the variance of the distribution of success, NPQ. Binomial distribution के लिए variance. Done. Next question. 183. 183. Before 183 है किसी का? हो गया सब? 183. One coin is thrown 100 times. The probability of coming tail in odd number means odd number of times the tail should come. ठीक है. 183. So 100C1 एक बार आ गया tail, that is 1/2 raised to the power 1 into 1/2 raised to the power 99 plus 100C3 1/2 raised to the power 3 1/2 raised to the power 97 and so on. ठीक है. 1/2 raised to the power 100 कॉमन आ गया. आई थिंक 1/2 आंसर आना चाहिए. क्या आंसर है? 100C1 प्लस 100C3 प्लस टिल 100C 99 तक आ जाएगा. ठीक है. 2 raised to the power n-1 होता है, बताया था एक बार. तो 2 raised to the power n-1 that is 99. 1/2. नेक्स्ट. ये आर्यम नहीं दिख रहा है मुझे आज, क्लास में भी नहीं है, ना इधर ऑनलाइन नॉर ऑफलाइन. चलो नेक्स्ट वाला बोलो. 183 के बाद क्विकली. सर 189 में मेरा आंसर तो आ गया था, लेकिन मुझे डाउट है कि मेरा मेथड सही है कि नहीं. If this are the probabilities of 3 mutually exclusive events, then the set of all values of P. हाँ बोल. सर इसमें पहले तो 1/3 1 + 3p/3 1 - p/4 एंड 1 - 2p/2 ये तीनों लेस देन इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होंगे. उससे हाँ. इंडिविजुअल p. हाँ, सबके लिए 0 से 1 के बीच में कंडीशन लगा दी. यस सर. आगे. आंसर सब क्योंकि तीनों प्रोबेबिलिटीज है तो तीनों का सम 1 से बड़ा नहीं हो सकता, वो भी लगा दिया, उससे फिर आ गया था. वो भी 0 से 1 के बीच में लगाना है. यूनियन ऑफ देम. यस सर. तीनों का यूनियन जब हम लेंगे तो तीनों का सम आ जाएगा, क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं. तो दैट सम हैज टू बी आल्सो बिटवीन 0 एंड 1. बस 4 केसेस 4 इनइक्वालिटीज होंगी, उनका जो कॉमन सॉल्यूशन आएगा वही आंसर होगा. यस नेक्स्ट. सर. नेक्स्ट बोलो. और कुछ बचा है? दैट्स इट, हो गया.
सबका कंप्लीट है, पक्का, फिनिश्ड? यहां से नहीं, नहीं, यस सर। हाँ कुछ नहीं है प्रॉब्लम, सब हो गया खत्म? यस सर, हो गया। किया था ट्राई या ऐसे ही? ठीक सर है, किया था। ठीक है। सो अभी तुम लोग को एनसीईआरटी बुक में देखो कितनी एक्सरसाइज है, एनसीईआरटी में देखो प्रोबेबिलिटी का कितने एक्सरसाइज है। लाए हो क्या? हम्म, 6 प्लस मिसलिनियस, 5 प्लस मिसलिनियस, ठीक है। तो फर्स्ट 5 है ना, फर्स्ट 5 एक्सरसाइजेस कंप्लीट कर लो, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में मैं मिसलिनियस एग्जांपल्स प्लस मिसलिनियस एक्सरसाइज देने वाला हूँ, ठीक है। डिस्कशन सबका एक साथ ही करेंगे। तब तक मेरा वेक्टर्स का थ्योरी इतना हो जाना चाहिए, क्योंकि कम से कम 2 या 3 दिन तो लग ही जाएंगे वेक्टर्स का थ्योरी करवाने में, सो दैट वी कैन प्रोसीड विद द प्रॉब्लम्स, ठीक है। वेक्टर्स का थ्योरी स्टार्ट करते हैं। वेक्टर्स में काफी ज्यादा थ्योरी है, 3D में भी काफी थ्योरी है। तो थ्योरी और थ्योरी जितना क्लियर होगा, द चैप्टर्स आर वेरी इजी देन। सो जिस चैप्टर में थ्योरी ज्यादा होता है उसमें ज्यादा ही जरूरत पड़ता है उसका, है ना। मुश्किल नहीं है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड द थिंग्स प्रॉपरली। लेट मी जस्ट मेक द प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ द क्लास, हाउ डू आई प्रोसीड। तुम लोग एक बार फोन देख लेना अगर कोई आ रहा हो तो, क्योंकि मैं आज फोन नहीं लेके आया हूं, तो हो सकता है कि अत्रे भैया कर रहे हो। आए क्या? लीनियर कॉम्बिनेशन, इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, ठीक है। शायद आज इतना हो जाना चाहिए, लेट्स सी। यूजुअल डेफिनेशन सब लोग जानते हैं, तो आई विल नॉट गो इनटू डिटेल ऑफ दोज यूजुअल डेफिनेशंस। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं मैं उसको डिस्कस करूंगा। ऑफ कोर्स वेक्टर में डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है, ये सब लोग जानते हैं। उसके बाद यूनिट वेक्टर भी सभी जानते हैं कि यूनिट वेक्टर जो है वो केवल डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, बिकॉज द वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड इज नोन एज द यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंटेड बाय ए कैप, ओके। देन को इनिशियल वेक्टर्स जिनका इनिशियल पॉइंट सेम हो जाएगा उनको हम को इनिशियल वेक्टर्स बोल देते हैं। लोकलाइज्ड वेक्टर पासिंग थ्रू अ सर्टेन पॉइंट आर नोन एज लोकलाइज्ड वेक्टर। फ्री वेक्टर कहीं से भी स्टार्ट हुआ कहीं भी खत्म हो गया उसको हम फ्री वेक्टर बोल देते हैं, ठीक है। सो लोकलाइज्ड वेक्टर हो गया, फ्री वेक्टर हो गया। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर सब लोग जानते हैं, एक पॉइंट से दूसरी जगह पे डिस्प्लेस किया उसको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोल देते हैं। देन स्केलर मल्टीपल ऑफ अ वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय अ कांस्टेंट क्वांटिटी, यानी कोई भी अगर हम स्केलर नंबर लेते हैं, जैसे 5 इंटू ए हो गया, तो वेक्टर का डायरेक्शन सेम रहेगा, उसका मैग्नीट्यूड 5 टाइम्स हो जाएगा। ये भी सब लोग जानते हैं, ठीक है। पहले मैं वही ले रहा हूँ जो सब जानते हो, राइट। जीरो वेक्टर जिसका डायरेक्शन डिफाइन नहीं होता है, मैग्नीट्यूड जीरो हो जाएगा। इक्वल वेक्टर्स, टू वेक्टर्स आर इक्वल इफ दे आर इन द सेम डायरेक्शन एज वेल एज देयर मैग्नीट्यूड्स आर सेम, ठीक है। Like and unlike vectors are said to be like if they are in the same direction, and if they are just opposite to each other we call them to be unlike vectors, है ना। ऑपोजिट होने का मतलब है पैरेलल होना भी जरूरी हो गया है, ठीक है। ऑलराइट, नाउ अब जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस आती है वो आती है कोलिनियर, कोप्लानर, पोजीशन वेक्टर, that's it. These three are very important definitions, so let us try to understand them. Collinear vectors,
collinear vectors. Now before I start with the definition of the vectors, सबसे important property जो vectors का होता है वो क्या होता है? Suppose मेरे पास स्पेस में कहीं पर यहाँ वेक्टर है. Now वेक्टर में दो चीज होती है, डायरेक्शन हो गया और मैग्नीट्यूड हो गया. अगर मैंने इसका डायरेक्शन मेंटेन किया और मैग्नीट्यूड मेंटेन किया तो दिस वेक्टर कैन बी ट्रांसफर्ड anywhere in the space keeping the magnitude and the direction to be same. All those vectors would be same. सबके सब इक्वल हो जाएंगे. जैसे इस वेक्टर को मैंने यहाँ लिया, ये भी सेम हो जाएगा. ठीक है, यहाँ ट्रांसफर कर दिया, ये भी सेम हो गया. सपोज मैं इस वाले हाथ पे लाना चाहता हूँ इसको इस प्लेन में, तो ये भी सेम हो जाएगा, बिकॉज आई हैव नॉट चेंज द डायरेक्शन एंड द मैग्नीट्यूड. ठीक है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द वेक्टर्स. क्यों? क्योंकि इसका मतलब ये हुआ कि मैं वेक्टर को 3 डायमेंशनल स्पेस में कहीं पर भी शिफ्ट कर सकता हूं, कीपिंग द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन टू बी सेम. अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को मैंने सेम रखा तो किसी भी वेक्टर को हम कहीं पर भी कैसे भी हम उसको ट्रांसफर कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं. ओके, ये अच्छी तरह से समझने की जरूरत है. अब उसके बाद क्या हो जाएगा, जैसे कोलिनियर. कोलिनियर वर्ड जो हम यूज करते हैं वो किसके लिए यूज करते हैं? कोलिनियर व्हाट? इसको भूल जाओ भी. कोलिनियर ऑफ व्हाट? कोलिनियर हम पॉइंट्स के लिए, है ना. 2 points are always collinear. 3 or more points are said to be collinear if they lie on the same line. अब वेक्टर का मैंने डेफिनेशन समझा दिया कि एक्चुअल में वेक्टर को हम कैसे कर सकते हैं, शिफ्ट वगैरह भी कर सकते हैं. तो व्हाट डू यू थिंक, वेक्टर्स को हम कोलिनियर कब बोलेंगे? 2 vectors are said to be collinear if their direction is same. डायरेक्शन ऑपोजिट होने पे कोलिनियर नहीं होगा. हाँ, जैसे मैंने ये बनाया, एक वेक्टर ऐसे बनाया ए, और एक वेक्टर मैंने इधर बना दिया ये वाला. अभी क्या कोलिनियर नहीं दिख रहा है क्या रिया? हाँ, तो फिर क्या अप्लाई किया? और कोई? 2 vectors are said to be collinear if anyone can improvise this. मैग्नीट्यूड से क्या फर्क पड़ेगा? कोलिनियर होने के लिए मैग्नीट्यूड का क्या प्रॉब्लम है, क्या इशू है? कोलिनियर का मीनिंग क्या है, पहले लिटरल मीनिंग बताओ. विच लाई इन द सेम लाइन, विच लाई इन द सेम लाइन. अब इसमें मैग्नीट्यूड का क्या फर्क पड़ेगा? हाँ बोल. हाँ सॉरी, तो इसका मतलब एंटायर वेक्टर यूसी भी हो गया ना. हेड और टेल अलग अलग थोड़ी होते हैं उसमें, तो एक ही बात होगी ना वो तो. और कोई? So parallel vectors irrespective of direction and magnitude. आवाज तेरी क्लियर नहीं आ रही है जैनम आज. हाँ, Sir, parallel to each other irrespective of the direction and the magnitude. Why? Why? Sir, anti-parallel हो जाएंगे तो फिर, क्योंकि vectors are defined with the help of direction as well, तो फिर. अरे यार ऐसे ऐसे शब्द क्यों यूज करता है? एंटी पैरेलल का क्या मतलब है? What do you mean by एंटी पैरेलल? एंटी पैरेलल क्या होता है? So दोनों के बीच में एंगल 180 डिग्रीज हो. दोनों के बीच में एंगल 180 हो तो उसको एंटी पैरेलल बोलते हैं. हाँ, जबरदस्ती कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हो चीजों को. सीधा सा मतलब है कि इफ 2 वेक्टर्स आर पैरेलल दे आर कोलिनियर. नाउ व्हाट इज द इश्यू? व्हाई? रीजन तो बताओ. कोलिनियर का लिटरल मीनिंग जानते हो, उसके बाद भी रीजन नहीं बता पा रहे हो. बिकॉज दे वन कैन बी शिफ्टेड ओवर द अदर. अभी तो समझाया है, यही तो अप्लाई नहीं कर रहे हो जिसको मैं अप्लाई करवाना चाह रहा हूं. उसी चीज पे ध्यान नहीं जा रहा है.
बस वो फिजिक्स में जो थोड़ा बहुत लिमिटेड वेक्टर्स पढ़ा हुआ वही वही चल रहा है दिमाग में. That's why when you are learning something, you should be free from the previous learning. नहीं तो वो हमेशा ऑब्स्टिकल की तरह यूज होता है. Of course, the things are said to be collinear if they lie in the same line. तो जो सेम लाइन में होंगे वो तो कोलिनियर होंगे ही. उसके लिए तो क्या पूछना है और क्या बताना है, वो तो हम जानते ही है, होना ही चाहिए. The more important thing is if the vectors are parallel, they are collinear because one can be shifted on the other. जैसे ये इसको मैं यहां ला सकता हूं, इसको यहां ला सकता हूं, ठीक है. It doesn't matter कि डायरेक्शन उनका इधर है या ऑपोजिट में है, doesn't matter. Simply they can be shifted and they can be made to lie on the same line. That's why those are collinear vectors. So two or more vectors are said to be collinear if they are parallel vectors. Simple. ना तो कुछ उसमें ऐड करना है ना कुछ सब्ट्रैक्ट करना है, बस. पैरेलल वेक्टर्स आर सेड टू बी कोलिनियर. वेक्टर्स के सेंस में हमने कोलिनियरिटी का डेफिनेशन को चेंज किया. आगे समझ में पक्का. सेकंड, कोप्लानर. कोप्लानर वेक्टर्स. पहले कोप्लानर बताओ. व्हाट डू वी मीन बाय कोप्लानर? सर जो एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं. जो एक ही प्लेन में लाई करते हैं, ठीक है. जैसे हमने पॉइंट्स की यहाँ पे बात की थी कि 2 पॉइंट्स आर ऑलवेज कोलिनियर, 3 पॉइंट्स माइट बी कोलिनियर और मे नॉट बी कोलिनियर. If they lie in the same line, they lie on the same line, we call them to be collinear, otherwise not. Okay. Similarly, पहले पॉइंट्स की बात करेंगे, वेक्टर्स की बात हमेशा बाद में, जिससे कि उससे कनेक्टेड जो कॉन्सेप्ट है वो एकदम क्लियर होना चाहिए. पॉइंट्स के बारे में, व्हाट कैन यू से अबाउट पॉइंट्स कोप्लेनर? नहीं, दे लाई इन द सेम प्लेन, बट अरे यहां भी तो बोला है 2 पॉइंट्स आर ऑलवेज कोलिनियर, 3 points may be collinear, may not be collinear. That means we need at least 2 points to draw a straight line. Similarly, if we have to draw a plane in the space, how many points do we need? हाँ, 3 are sufficient. At least की जरूरत नहीं है अपने को, ठीक है. जैसे 2 sufficient होता है लाइन बनाने के लिए, वैसे ही 3 points are always coplanar. 3 points are always coplanar. हमें अगर एक प्लेन बनाना है स्पेस में तो हमारे को 3 पॉइंट्स चाहिए. उसके बाद 4 पॉइंट्स मे बी कोप्लेनर और मे नॉट बी कोप्लेनर. 4 पॉइंट्स मे बी कोप्लेनर और मे नॉट बी कोप्लेनर, ठीक है. 3 points are always coplanar. That means a unique plane can be drawn through 3 points always. ठीक है. 2 पॉइंट सफिशिएंट नहीं है. अगर अपने पास में ऐसे 2 पॉइंट हैं तो मैं यहां से ऐसे भी बना सकता हूं प्लेन को, ठीक है. फिर यहां से ऐसे भी बना सकता हूं, क्योंकि 2 पॉइंट से एक लाइन पास होगी. ऐसे समझा देता हूं. ये 2 पॉइंट हो गए, यहां से लाइन पास हो गई, तो यहां से मैं एक ऐसा प्लेन बना सकता हूं, यहां से एक ऐसा प्लेन बना सकता हूं. इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स कैन बी ड्रॉन, ठीक है. But 3 points will always determine one single plane, unique plane. Okay, and 4 points may be coplanar or may not be. If they lie on the same plane, we call them to be coplanar, otherwise not. ठीक है. Now come to the as far as the vectors are concerned, to the case when the vectors are involved. What do you think? When do we call the vectors to be coplanar? When we would call the vectors to be coplanar? Yes, anyone from here? कोई बता रहा है इधर से? नो. वही शिफ्टिंग वाला प्रॉपर्टी यूज ही नहीं कर रहे हो.
अभी ये एक प्लेन है, अगर इसमें कोई वेक्टर्स हैं तो वो तो हमेशा कोप्लेनर ही होंगे। सेम प्लेन में जो वेक्टर्स हैं वो तो कोप्लेनर होंगे ही, उनके बारे में क्या बात करनी है। जैसे कि ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये सब कोप्लेनर वेक्टर्स हैं बिकॉज दे आर ऑल लाइंग इन द सेम प्लेन। ठीक है, विल दिस वेक्टर बी कोप्लेनर विद देम? हाँ, यस और नो तो बोलो। हाँ, इसको शिफ्ट कर सकते हैं ना, पैरेलल लेके जा रहे हैं तो इस प्लेन में लेके जा सकते हैं। ठीक है, सो इसको हम इसमें शिफ्ट कर सकते हैं, देयरफॉर दिस वेक्टर इज कोप्लेनर विद ऑल ऑफ देम। ठीक है, व्हाट अबाउट दिस, इज दिस वेक्टर कोप्लेनर विद ऑल दीज वेक्टर्स? नहीं होगा। हाँ, क्योंकि ये ऐसे शिफ्ट होगा तो ये इस प्लेन में लाइन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, प्लेन से ऑब्वियसली इंटरसेक्ट तो कर ही सकता है, बट इट इज कमिंग आउट ऑफ द प्लेन, इट्स नॉट लाइंग इन द प्लेन। ठीक है, तो what should we say for the vectors to be coplanar? They should be parallel to the same plane. ठीक है, the vectors which are parallel to the same plane are coplanar vectors. The vectors are said to be coplanar if they are parallel to the same plane. नहीं, वीडियो ऑफ मत कराकर समरथ। सर यहाँ बारिश हो रही तो वो नेट लैग कर रहा है थोड़ा थोड़ा। ऐसा कौन सा नेट है यार तेरे पास में? सर डेटा, बारिश तो इधर भी। हाँ, डेटा फिर से डेटा यूज कर रही है? सर अरे तो तू डेटा ये वाईफाई नहीं लगा हुआ घर पे, हमने नहीं तो लगवाया। लगवाना वाईफाई। पढ़ने के लिए तो वाईफाई चाहिए ना, डेटा से कैसे काम चलाएंगे? इंजीनियर बनना है ना तुझे या जुगाड़ बनना है? ऐसे जुगाड़ वाले काम करते ना, मुझे सही नहीं लगता है वो। अच्छे से काम करो, जब पढ़ना है ढंग से पढ़ना है तो फिर वाईफाई भी चाहिए। ओके, कोप्लेनर वेक्टर्स है ना, द वेक्टर्स विच आर पैरेलल टू द सेम प्लेन आर नोन एज कोप्लेनर वेक्टर्स। ओके, अब बताना है तुम लोगों को। अच्छा, पहले मैंने यहां पे बताया था, फिर से रिपीट कर रहा हूं, 2 points are always collinear but 3 points might not be। ठीक है, सिमिलरली कोप्लेनर पॉइंट्स के लिए मैंने बात की, 3 points are always कोप्लेनर। पॉइंट से वेक्टर से कंफ्यूज नहीं होना है, पॉइंट और वेक्टर में कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। ठीक है, 4 points might be और may not be, दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक है, now we have defined the vectors to be coplanar if they are parallel to the same plane. What do you think, are two vectors coplanar? सर मे और मे नॉट बी। हाँ, सर मे और मे नॉट बी। दो वेक्टर्स कोप्लेनर होना मतलब जरूरी नहीं है तेरे हिसाब से? यस सर। ठीक है, और कोई बताएगा? टू वेक्टर्स, हाँ क्या? एक मिनट, क्षितिज को बोलने दे। हाँ, क्यों? नहीं, मैंने ऐसे बना दिया तो? हाँ, तो कैसे तो बता, इधर ले आऊं कैसे? किसको नीचे शिफ्ट करूं? हो गया ना शिफ्ट, और कितना शिफ्ट करेगा? अरे सेम प्लेन में आ तो गए। हाँ, हाँ, वो ऐसे बताना चाह रहा है क्या? नहीं, क्यों अलाइन करना है? मैं जानबूझ के मैं कर रहा हूं ऐसे अलाइन, वो प्रॉपर अलाइन करने से तो गलत समझेंगे ना। नहीं करना है ना ऐसे अलाइन, ऐसे करना है उल्टा सीधा कुछ भी। ठीक है, यस, सही बताया उसने, कॉन्सेप्ट तो सही समझा, बस बताने में थोड़ा सा हेजिटेशन हो गया। ठीक है, टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर, एनी टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर, कैसे भी रख लो वेक्टर्स को, इट डजंट मैटर। ठीक है,
हमने इसको शिफ्ट करना शुरू किया, ऑब्वियसली दे विल मीट। ठीक है, दिस इज द प्लेन, जहां पे वो मीट कर रहे हैं वही तो प्लेन हो गया उनका। दैट्स व्हाई टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर, ऑलवेज कोप्लेनर। थ्री वेक्टर्स मे बी और मे नॉट बी। थ्री वेक्टर्स का कोप्लेनर होना जरूरी नहीं है, but two vectors will always be coplanar. Do remember that carefully. 3 points are always coplanar. 4 points may be or may not be. Two vectors are always coplanar. 3 vectors may be or may not be. आगे समझ में? ठीक है? That is how we define the coplanar vectors. Now, the third definition is also very important. Position vector. Position vector. अब जब हम पोजीशन वेक्टर की बात कर रहे हैं, इसका मतलब नाम से क्लियर हो रहा है कि किसी चीज की पोजीशन बताने वाला है वो वेक्टर। ठीक है, किसकी पोजीशन बताने वाला है? व्हाट डू यू गेस? हाँ, किसकी? पॉइंट, हाँ पॉइंट, पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर क्या करेगा? किसी पॉइंट की इन द 3 डायमेंशनल स्पेस पोजीशन बताएगा। ठीक है, पोजीशन को स्पेसिफाई करेगा, दैट इज नोन एज द पोजीशन वेक्टर। अब पोजीशन को स्पेसिफाई करेगा तो विद रेफरेंस टू समथिंग होना चाहिए। जिस पॉइंट के रेफरेंस में वो पोजीशन बताने वाला है, उस पॉइंट को हम बोलते हैं ओरिजिन। अब ओरिजिन से कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे। ठीक है, origin does not mean always x axis, y axis, z axis का point of intersection, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। any point can be considered as the origin। ठीक है, सपोज मैंने एक पर्टिकुलर सिस्टम ऑफ वेक्टर्स के लिए, एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए मैंने इस पॉइंट को पोजीशन इसको ओरिजिन ले लिया। अब इसके रेस्पेक्ट में ही हम बात करेंगे पूरी। यहां से इस पॉइंट तक गए, ये जो वेक्टर बना ये इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हो गया। यहां से यहां तक गए, इस पॉइंट तक, ये दिस वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट। सिमिलरली फ्रॉम हियर टू हियर, इफ वी गो हियर, दैट मीन दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट। ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर जिस पॉइंट से स्टार्ट होगा उसको हम ओरिजिन बोलेंगे। ओरिजिन डज नॉट मीन 0 0 0, नॉट नेसेसरी, एनी पॉइंट कैन बी कंसिडर्ड एज ओरिजिन। ठीक है, इसको मैंने किसी भी पॉइंट को ओरिजिन बोल दिया। यहां से स्टार्ट किया ये वाला वेक्टर, दिस इज, या ऐसे लिख देता हूं एक बार पहले, शुरू में वेक्टर नहीं बनाता हूं, से दिस इज द पॉइंट ओरिजिन। स्पेस में एक पॉइंट यहां है, एक यहां है। ऑफ कोर्स मेरे पास प्लेन 2D है तो मैं इसमें बना रहा हूं, अदरवाइज वो कहीं भी हो सकता है स्पेस में। ठीक है, ऐसे हो गया पॉइंट। नाउ इससे इसको ज्वाइन किया, दिस वेक्टर इज से पोजीशन वेक्टर ए, तो दिस पॉइंट इज रिप्रेजेंटेड बाय पोजीशन वेक्टर ए। जस्ट लाइक कोऑर्डिनेट्स, जैसे हम लोग कोऑर्डिनेट्स से पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं, वैसे ही हम पोजीशन वेक्टर से पॉइंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, ये वाला पॉइंट से बी, तो इससे इसको ज्वाइन किया, दिस इज से पोजीशन वेक्टर बी, दिस इज सी। ओके, बी इज रिप्रेजेंटेड बाय पोजीशन वेक्टर बी, सी इज रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर सी। आगे समझ में? ठीक है, पोजीशन वेक्टर और फ्री वेक्टर में यही फर्क होगा। पोजीशन वेक्टर में इनिशियल पॉइंट हमेशा ओरिजिन होगा और उस पॉइंट पे खत्म होगा जिसका हम पोजीशन वेक्टर बताने वाले हैं। यानी किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर यूनिक होगा, एक से ज्यादा नहीं होगा। फ्री वेक्टर कैन स्टार्ट फ्रॉम एनीवेयर टू एनीवेयर, डजंट मैटर। ठीक है, तो अब एक नया इश्यू ये आता है, सपोज मैंने यहां पे ओरिजिन लिया और ये वाला पॉइंट ए लिया, जिसके लिए मैंने बोला कि ये पोजीशन वेक्टर को, ये पोजीशन वेक्टर है पॉइंट ए का। दैट मींस दिस वेक्टर इज ए, दिस वेक्टर इज ए। नाउ इसके पैरेलल मैंने इक्वल वेक्टर्स बना दिए, ये भी वेक्टर ए हो गया, ये भी वेक्टर ए हो गया, ये भी वेक्टर ए हो गया,
What do you think? What is the difference between these vectors and this vector? क्वेश्चन समझ में आ गया मेरा क्या है? नहीं, क्यों? अपन ओरिजिन एक बार में एक ही लेंगे, ऐसा नहीं बार बार ओरिजिन चेंज ही करते रहेंगे. For the system of vectors, if we have fixed origin to be some point, then we will throughout the system we will take that point as the origin. Origin थोड़ी चेंज करेंगे बार बार, फिर तो ऐसे कंफ्यूजन ही होता रहेगा. और कोई? अरे सीधा सीधा तो दिख रहा है. This is the position vector and all these vectors are what? Free vectors. इसका मतलब ये नहीं कि पोजीशन वेक्टर अलग होगा, फ्री वेक्टर अलग होगा. पोजीशन वेक्टर रिप्रेजेंट अलग चीज को करेगा, बट दे आर सेम, दे आर इक्वल. सो व्हाट? दे मे बी. उससे क्या फर्क पड़ता है? ठीक है. मेनी वेक्टर्स आर इक्वल. इनफैक्ट इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेक्टर्स आर इक्वल. उसके पैरेलल बनाते जाओ, सारे वेक्टर्स इक्वली तो आएंगे. ठीक है, विद द सेम मैग्नीट्यूड. But only one of them will represent the position vector. आ गया समझ में? ठीक है. तो पोजीशन वेक्टर और फ्री वेक्टर में डिफरेंस अच्छी तरह से पता होना चाहिए हमें. पक्का? पोजीशन वेक्टर से जैसे ही हम चीजों को यूज करना शुरू करते हैं, the things really become very simple. ओके. जैसे तुम लोग जनरली, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बताता हूं, वो तो जो स्टूडेंट्स बताते हैं मुझे उसी का फीडबैक लेके मैं यूज करता हूं उसका. जैसे हेक्सागन बना दिया ऐसा कुछ, ठीक है, और फिर उसके बाद में ऐसे बच्चों को देखा मैंने, दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इज इक्वल टू दिस वेक्टर, दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इज इक्वल टू दिस वेक्टर. फिर ऐसे जा रहे हैं, फिर ऐसे कर रहे हैं, बहुत मेहनत करते हैं. ठीक है, ऑफ कोर्स होता होगा ऐसे ही जैसा भी तुम लोगों ने पढ़ा होगा. बट अब इसी प्रॉब्लम को अगर मैं पोजीशन वेक्टर से सॉल्व करूंगा, जहां इस तरह से वेक्टर्स लाइन वेक्टर का यूज करके ऐसे ऐसे सॉल्व करते रहोगे ऐड कर करके, जहां 10 मिनट लगेगा, अगर मैं पोजीशन वेक्टर से यूज करूंगा तो 1 मिनट में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा. ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर का यूज करना हमें आना चाहिए. आई रियली डोंट नो व्हाई पोजीशन वेक्टर इज नॉट बीइंग टॉट. पोजीशन वेक्टर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल. ठीक है, तो हम लोग काफी यूज करेंगे पोजीशन वेक्टर को. Correct. Next, these are the definitions of vectors. अब operations on vectors, just like हमने matrices डिफाइन किया था, उसके अलग अलग operations डिफाइन किए थे, ऐसे ही numbers हम डिफाइन करते हैं, उसके अलग अलग operations डिफाइन करते हैं. ओके, कॉम्प्लेक्स नंबर्स डिफाइन करते हैं, उसके ऑपरेशंस डिफाइन करते हैं. वैसे ही हम वेक्टर्स के लिए भी ऑपरेशंस डिफाइन करते हैं. दैट्स व्हाई वी कॉल इट वेक्टर अलजेब्रा. वेक्टर अलजेब्रा. सो द सिंबल्स माइट बी सेम बट द मीनिंग मे बी वेरी डिफरेंट. तो मीनिंग बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर होना चाहिए. सो वी कॉल इट एडिशन ऑफ वेक्टर्स. एडिशन ऑफ वेक्टर्स. दो वेक्टर्स का एडिशन हम कैसे डिफाइन करेंगे? This is not exactly same as defining the addition of two matrices or the addition of two numbers. ठीक है, जैसे नंबर लाइन पे अपन डिफाइन दो नंबर्स का एडिशन हम कैसे डिफाइन करते हैं? 5 + 7 का क्या मीनिंग होगा कि हम 5 डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, फिर उसी डायरेक्शन में हम 7 डिस्टेंस और कवर करेंगे. wherever we reach we say this is the addition of these two numbers. नंबर लाइन का हम हेल्प लेते हैं. ऐसे ही दो वेक्टर्स का एडिशन हम कैसे डिफाइन करेंगे? सपोज मेरे पास स्पेस में कहीं भी दो वेक्टर्स गिवन है A एंड B. आई वांट टू डिफाइन देयर एडिशन. ठीक है, हाउ द एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स इज डिफाइंड? वेक्टर A के पैरेलल एक वेक्टर बनाएंगे, ऑब्वियसली दैट इज आल्सो वेक्टर A. वेक्टर B के पैरेलल एक और वेक्टर बनाएंगे स्टार्टिंग फ्रॉम द हेड ऑफ द वेक्टर A. ठीक है, इसके पैरेलल एक वेक्टर बना देंगे B. This is vector B, which can always be done. Why? Shifting property of the vectors. ये भी बहुत सरप्राइजिंग सी बात है. शिफ्टिंग प्रॉपर्टी हर जगह हम काम लेते हैं वेक्टर्स का, बट यू आर नॉट अवेयर ऑफ शिफ्टिंग ऑफ द वेक्टर्स. नॉट एट ऑल. जब मैं देखता हूं तुम लोगों को
तो समझ ही नहीं पाते हो कि शिफ्टिंग क्या हो रहा है, क्योंकि शुरू में देखो समझ ही नहीं पाए थे शिफ्टिंग कैसे कर सकते हैं। ठीक है, नाउ फर्स्ट वेक्टर के इनिशियल पॉइंट से सेकंड वेक्टर के एंड पॉइंट को ज्वाइन करने पे एक नया वेक्टर हमें मिलेगा। दिस न्यू वेक्टर इज सेड टू बी देयर रिजल्टेंट और देयर एडिशन, रिप्रेजेंटेड बाय दिस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ये डेफिनेशन है, डेफिनेशन पे आप वाई नहीं लगाएंगे। दिस इज हाउ वी डिफाइन द एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, द वेरी फर्स्ट ऑपरेशन ऑन वेक्टर्स। तो दो वेक्टर्स का हम इस तरह से एडिशन को डिफाइन करते हैं। करेक्ट। अब अगर मैं इस डेफिनेशन का यूज करता हूं तो आई कैन ऐड एनी नंबर ऑफ वेक्टर्स। ओके, कैसे देखो, सपोज मैंने ये वेक्टर ए बनाया, ये मैंने वेक्टर बी बनाया, ऑफ कोर्स शिफ्ट कर रहा हूं मैं, कहीं पे भी हो स्पेस में वी कैन ऑलवेज शिफ्ट। ठीक है, इवन इफ दे आर नॉट कोप्लेनर, ऐसे हो गया, फिर एक ऐसे चला गया, फिर एक ऐसे चला गया, फिर एक ऐसे आ गया, किधर भी हो सकता है, डजंट मैटर। ओके, देन उसके बाद में यहां से यहां चले गए, सी वेक्टर हो गया। अब इन सब का रिजल्टेंट यानी इन सब का एडिशन चाहिए मुझे, इन तीनों वेक्टर्स का, यानी विच वेक्टर वुड रिप्रेजेंट ए प्लस बी प्लस सी। वेरी इजी, ए और बी का एडिशन ये वाला वेक्टर आ जाएगा, इजंट इट। ठीक है, यहां से देखो ये वाला आ गया, इसका मतलब इसका इनिशियल पॉइंट, इसका एंड पॉइंट, यानी दिस वेक्टर विल बी ए प्लस बी प्लस सी। अल्टीमेटली क्या हुआ, फर्स्ट वेक्टर का इनिशियल पॉइंट लास्ट वेक्टर का एंड पॉइंट को ज्वाइन करने पर जो वेक्टर मिलेगा दैट इज द एडिशन ऑफ ऑल द गिवन वेक्टर्स। ठीक है, कितने भी बना लो, ऐसे बनाया ए, ऐसे बनाया बी, ऐसे बना लो सी, देन कम बैक हियर डी, देन ई, और इन सब का एडिशन विल बी विच वेक्टर, इनिशियल पॉइंट ऑफ ए, एंड पॉइंट ऑफ ई, इन सबको ज्वाइन कर देंगे, इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे, दिस इज ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। एनी ऑब्जेक्शन? आ गया सबको समझ में? है किसी को डाउट? बोलना है डाउट अगर है तो। पक्का? दिस इज हाउ वी डिफाइन द एडिशन ऑफ वेक्टर्स। प्रॉपर्टीज, ये ऑपरेशन मैंने डिफाइन किया है, इसका फर्स्ट प्रॉपर्टी आ जाता है a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। एडिशन ऑफ वेक्टर्स इज कॉम्यूटेटिव, एडिशन ऑफ वेक्टर्स इज कॉम्यूटेटिव। ए में बी को ऐड करें या बी में ए को ऐड करें डज नॉट मैटर। हाउ कम? कौन बताएगा? कैसे शिफ्टिंग कैसे? किसकी? हाँ हाँ, वही तो प्रूव करना है, कैसे सेम होगा? नहीं तो शिफ्ट कर दिया ये मैंने, चल ऐसे कर देता हूँ जो तू बता रहा है। ये बी हो गया, अब बोल, इसको ज्वाइन कर दूं ऐसे, यही होगा ना बी प्लस ए, सो दिस इज बी प्लस ए। तो क्यों? क्यों होंगे पैरेलल? क्यों तो पूछना ही नहीं है, बस मान लेते हो कि होंगे पैरेलल,
इतना क्यों पूछे, क्यों? किसी का भी करना है यार, मना कौन कर रहा है, बता। अब तू जरूरत से ज्यादा बोल रहा है, इतनी जरूरत ही नहीं है। कहाँ तो बोल ही नहीं रहा था, अब कहाँ जरूरत से ज्यादा बोल रहे हैं, आगे बोल। अब गड़बड़ हो गई है, ज्यादा बोलने में यही तो प्रॉब्लम होती है, सोचना कम हो जाता है फिर। अरे कितना सिंपल सा तो है यार, ये दोनों पैरेलल हैं और इक्वल हैं। तो अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, व्हाट डज इट मीन? पैरेललोग्राम। तो दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, डायरेक्शन तो अपने को दिख ही रहा है एरो से, दैट्स व्हाई दे आर इक्वल। कितना सिंपल सा बोलना था। ठीक है, one pair of opposite sides are equal and parallel, that's why it's a parallelogram, and because of that direction दोनों का same है, these two are equal in length also, therefore a plus b is equal to b plus a. Vector addition is commutative. अब तुम लोग ग्रांटेड लेके चलते हो ऐसी चीजों को, अरे क्या फर्क पड़ता है, हाँ होता है ये तो। कैसे कंपेयर करते हो? 3 plus 5 is equal to 5 plus 3, which is exactly very wrong, because 3 प्लस 5 और 5 प्लस 3 का जो सिचुएशन है वो a प्लस बी और b प्लस a का सिचुएशन नहीं है, और वहीं से हमारा माइंड जो है वो गलत चीजें पकड़ना शुरू कर देता है। तो उससे कंपेयर मत करो बिल्कुल भी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन भी इन्वॉल्व है, इसके अपने लॉज हैं। ये जैसे सेम सिंबल दिख गया, बस सेम अप्लाई करना शुरू कर देते हो सब जगह, विच इज नॉट करेक्ट। तो ऐसे नहीं करना है, आगे समझ में। सेकंड, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स को हम डिफाइन कैसे करते हैं, यानी a माइनस बी का डेफिनेशन इज सेम एज एक्चुअली a प्लस ऑफ माइनस बी। अब माइनस बी का डेफिनेशन क्या है, यानी नेगेटिव ऑफ द वेक्टर b, यानी ऑपोजिट डायरेक्शन में सेम वेक्टर ले लेंगे, ठीक है। सो सपोज ये मेरे पास में a है और ये वाला मेरे पास b मैंने डिफाइन किया, तो माइनस b विल बी ऑन दिस साइड ऑपोजिट डायरेक्शन, डायरेक्शन वुड बी ऑपोजिट। तो a माइनस बी का मीनिंग हो जाएगा इन दोनों का एडिशन। इन दोनों का एडिशन कौन सा वेक्टर होगा? ये वाला वेक्टर, which is a plus of minus b, which can be written as a minus b. This is how we define the subtraction of two vectors. Okay, so according to that, obviously a minus a would be equal to what? Zero vector. ठीक है, आपने a लिया, फिर वापस देखो यहां से स्टार्ट किया ये a, ठीक है, फिर यहीं वापस आ गए ऑपोजिट डायरेक्शन में। सो नाउ दिस पॉइंट जॉइनिंग दिस पॉइंट अगेन, ऑब्वियसली जीरो वेक्टर, करेक्ट। फोर्थ, we can also say a plus zero vector would be equal to 0 plus a vector is equal to a vector. करेक्ट। फिफ्थ, स्केलर मल्टीपल ऑफ ए वेक्टर, जैसे मैं बोलता हूं अल्फा इंटू ए, इसका मतलब क्या हो गया? अ न्यू वेक्टर which is obtained by multiplying the original vector a by alpha, alpha times of a. That alpha may be however small or maybe maybe very big, doesn't matter, alpha times हमें लेना है, ठीक है। So alpha multiplied by vector a plus b, can I write alpha into a plus alpha into b? अल्फा को हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं ए और बी के ऊपर, वाई?
हाउ कम? नहीं, ऐसे नहीं सोचना है। फर्क क्यों नहीं पड़ेगा, वही तो सोचना है। क्यों सोचना है, क्यों फर्क नहीं पड़ेगा? अरे ये ए हो गया, इसका अल्फा टाइम्स यहाँ पे आ जाएगा से, ये बी है, इसका अल्फा टाइम्स ऐसे आ जाएगा, तो फिर इन दोनों का जो एडिशन होगा वो क्या होगा? अल्फा इंटू ए प्लस अल्फा इंटू बी, है ना? इसी का मैग्नीट्यूड अल्फा टाइम्स एक्सटेंड हो जाएगा, इसलिए ऐसा होगा। सिमिलर ट्राइंगल, दिस ट्राइंगल एंड दिस ट्राइंगल, ठीक है? दिस अपॉन दिस इज अल्फा, दिस अपॉन दिस इज अल्फा, सो दिस अपॉन दिस इज ऑल्सो अल्फा, दैट्स व्हाई अल्फा टाइम्स ऑफ ए प्लस बी। आगे समझ में? ठीक है। सिक्स्थ, स्केलर मल्टीपल अगर हम लें अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाइड बाई ए, कैन आई राइट अल्फा इंटू ए प्लस बीटा इंटू ए? सही है। अल्फा प्लस बीटा इंटू ए इज इक्वल टू अल्फा इंटू ए प्लस बीटा इंटू ए। करो एक्सप्लेन। नहीं, हाँ जैसे मैंने ये ए ले लिया, अब इसका अल्फा टाइम्स ए ले लिया, ये वाला हो गया, ठीक है? और बीटा इंटू ए, बीटा इंटू ए भी बीटा टाइम्स ऑफ ए, उसको भी इसी के साथ यूज करेंगे क्योंकि ए तो इसी डायरेक्शन में रहेगा ना, ठीक है? सो बीटा इंटू ए, ये भी और आगे चला गया बीटा इंटू ए। अब इस बीटा इंटू ए को यहां से स्टार्ट कर देंगे, सो से दिस मच इज बीटा इंटू ए, वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर, बीटा इंटू ए वहां तक पहुंच जाएंगे, तो टोटल कितना हो गया? अल्फा ए प्लस बीटा ए, दैट्स व्हाई अल्फा प्लस बीटा इंटू ए हो गया, ठीक है? आगे समझ में सबको? सेवेंथ, सपोज मैंने ऐसे एक ट्राइंगल बनाया ए बी सी, दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर क्या हो जाएगा? 0। दिस प्लस दिस इज 0 क्योंकि वी आर रीचिंग एट द सेम पॉइंट अगेन। एंड अगर मैंने एरो ऐसे चेंज कर दिया, ऐसे वाला, तो व्हाट डज इट मीन? ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। अरे एडिशन का मीनिंग ही नहीं समझे अभी तक क्या? फर्स्ट वेक्टर के इनिशियल पॉइंट से सेकंड वेक्टर का एंड पॉइंट। If I write the arrow like this, that means AB plus BC is equal to AC. AB plus BC is equal to AC, but AB plus BC plus CA would be equal to 0. ठीक है? अब क्या होता है, मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो मैथ्स में अपन डेवलप करते हैं, उसमें जो हमने पुरानी चीजें पढ़ी हुई होती हैं, काफी सारी प्रॉपर्टीज उससे मैच कर जाती है। तो जैसे ही वो प्रॉपर्टीज मैच करती हैं और हम ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं कि हर चीज मैच ही कर रही है। अब जैसे अगर मैट्रिसेस जिसको भी ध्यान हो, तो मैंने सबसे इंपॉर्टेंट जो एक चीज, अगर किसी को पता है तो बताओ, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या बताई थी मैट्रिक्स के लिए? सबसे इंपॉर्टेंट बात, वन सिंगल पॉइंट विच वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। नहीं याद रहती ना ऐसी चीजें? हाँ, नंबर्स नहीं, वो हाँ, क्या क्या वापस बोल। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैट्रिक्स पढ़ने में थी वो थी ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। अगर ए बी इज इक्वल टू बी ए होता तो मैट्रिक्स बिल्कुल नंबर की तरह ही हो जाता, हमें कुछ करना ही नहीं पड़ता फिर उसमें सीखने के लिए।
ठीक है, बट AB वाज नॉट इक्वल टू BA इन केस ऑफ टू मैट्रिसेस। तो बहुत सारी चीजें नंबर की तरह, उसका अलजेब्रा, मैट्रिक्स अलजेब्रा काफी हद तक अर्थमेटिक की तरह हम यूज करते हैं, बट एक या दो प्रॉपर्टी भी अगर चेंज हो गई या अलग आ गई तो फिर पूरा सिचुएशन चेंज हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही वेक्टर्स में भी होता है, तो ये बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना है। अब जैसे ये क्या किया मैंने, इसको इधर ट्रांसफर किया तो -AC आ गया, है ना, इसको हमने क्या लिख दिया, CA, तो प्लस CA इज इक्वल टू 0। तो वैसे भी यूज कर सकते हो और ज्योमेट्री से भी देख सकते हो, दोनों तरीके से प्रूव हो रहे हैं। करेक्ट, दिस इज हाउ वी डिफाइन द एडिशन ऑफ वेक्टर्स। नाउ writing a vector, a free vector, in terms of the position vectors of its end points, in terms of the position vector of its end points। हमने कोई भी दो पॉइंट ले लिए स्पेस में, दोनों का पोजीशन वेक्टर डिफाइन कर दिया, A और B से रिप्रेजेंट कर दिया। We want to find out vector AB in terms of the position vector of point A and point B. So what I want, suppose मैंने एक लाइन वेक्टर लिया, फ्री वेक्टर, I mean to say this is starting with point A having position vector A, ending at point B having position vector B. My purpose is to write the vector AB in terms of vector A and vector B. ठीक है, अब जब मैं यूज करता हूं कि वेक्टर A वेक्टर B, तो तुम लोग को ध्यान ये रखना है कि कब मैं लाइन वेक्टर की तरह यूज कर रहा हूं और कब मैं पोजीशन वेक्टर की तरह यूज कर रहा हूं। ठीक है, जैसे मैंने शुरू में क्या बोला, पॉइंट A एंड B आर रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर A एंड वेक्टर B। इसका मतलब क्या हुआ, दे आर पोजीशन वेक्टर्स। ठीक है, क्योंकि पॉइंट हमेशा पोजीशन वेक्टर से ही रिप्रेजेंट होगा। आगे समझ में, ठीक है। नाउ AB मुझे निकालना है इन टर्म्स ऑफ वेक्टर A एंड वेक्टर B। हाउ डू वी फाइंड, से दिस इज द ओरिजिन हियर, O से A को ज्वाइन किया मैंने, दिस इज वेक्टर A, पोजीशन वेक्टर का मीनिंग यही होता है। O से B को ज्वाइन किया मैंने, दिस इज वेक्टर B। ठीक है, आगे समझ में। नाउ दिस प्लस दिस, this plus this is equal to this, so vector A plus vector AB is equal to vector B। एडिशन ऑफ वेक्टर्स, दोनों साइड में से A को सबट्रैक्ट कर दिया मैंने, दिस इज अ वेक्टर इक्वेशन, तो ऐसे कर दो या ऐसे बोल दो, -A को ऐड कर दिया दोनों में, -A प्लस A प्लस AB इज इक्वल टू B माइनस A। शुरू में बताना पड़ता है जिससे कि कंफ्यूजन नहीं हो, अलजेब्रा की तरह डील मत करो कि इसको तो ट्रांसफर कर दिया, ये ऑपरेशन हो रहा है एक्चुअली। दिस बिकम्स जीरो वेक्टर एंड जीरो वेक्टर प्लस AB वेक्टर इज सेम एज AB वेक्टर, दैट्स व्हाई B माइनस A। अब एक बार कर लिया, समझ लिया, उसके बाद कर सकते हो, अब ट्रांसफर कर सकते हो, just like simple algebra। ठीक है, many rules are like simple algebra but certain rules are not like that and you have to be careful of them। okay, so vector AB we have found in terms of the position vectors of points A and B। कैसे, अगर मुझे वेक्टर AB लिखना है तो सेकंड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस फर्स्ट पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, सेकेंड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस फर्स्ट पॉइंट का पोजीशन वेक्टर will give you the vector AB in terms of the end position vectors of the end points। आगे समझ में, एनी डाउट, करें प्रोसीड आगे। ठीक है,
Now this is very, very important. Okay. Next. Let me see what should I take now. कुछ थ्योरम्स हैं, पहले वो लें या कुछ डेफिनेशंस भी हैं? थ्योरम्स तक अपन कर सकते हैं, ठीक है. लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स. लीनियर combination of vectors. If a vector R is expressed like x into A plus y into B plus z into C and so on, where x, y, z are scalars. Scalars which are not vectors are scalars. If a vector R is expressed in terms of vector A, vector B, vector C like this, यानी some scalar multiples और उन सब का addition लिख रहे हैं अपन, then R is said to be, then R is said to be a linear combination of vectors A, B, C, etc. ठीक है, linear combination of vectors. A vector R, if it is being expressed as x into A plus y into B plus z into C and so on, where x, y, z and x, y, z etc. are scalar numbers, then vector R is said to be a linear combination of vectors A, B, C, etc. Okay. Next definition is linearly dependent. Linearly dependent and linearly independent. Linearly dependent and linearly independent vectors. Linearly dependent and independent vectors. Okay. If lambda 1 into A1 plus lambda 2 into A2 plus lambda 3 into A3, of course these are vectors, till lambda n into An is equal to 0. Okay. And if at least one of lambdas, that is lambda 1, lambda 2, lambda n, इसमें से कोई सा भी एक, कम से कम एक, is not equal to 0, then the system of vectors, then the system of vectors A1, A2, An is said to be linearly dependent. Linearly dependent system of vectors. ये लीनियर कॉम्बिनेशन का ध्यान रखना, उसी से समझ में आएगा नेक्स्ट डेफिनेशन. लीनियर कॉम्बिनेशन मींस किसी भी वेक्टर आर को हमने इस तरह से एक्सप्रेस कर दिया तो वो लीनियर कॉम्बिनेशन बोलते हैं. एंड इफ
all lambdas are equal to 0, and if lambda 1 is equal to lambda 2 is equal to lambda n is equal to all 0, then the system of vectors a1, a2 up to an is said to be linearly independent. Linearly independent system of vectors. ठीक है, देखते हैं कितने लोग समझे डेफिनेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निकल डेफिनेशन है, बहुत काम आने वाली है, क्योंकि प्रॉब्लम में सीधा लिखा हुआ आ सकता है, प्रूव दैट द वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। इफ देयर एग्जिस्ट अ रिलेशन लाइक दिस, या कह सकते हो कि देयर आर स्केलर्स lambda 1 lambda 2 lambda n exist such that lambda 1 into a1 plus lambda 2 into a2 till lambda n is 0, and if all the lambdas are not 0, all the lambdas are not 0, if all the lambdas are not 0, that means कम से कम एक नॉन जीरो है, तो हम बोलेंगे कि वो सिस्टम लीनियरली डिपेंडेंट है। और अगर सारे लैम्डा जीरो हो गए तो वी विल कॉल द सिस्टम टू बी लीनियरली इंडिपेंडेंट। बताओ कैसे? एनीवन? Linearly dependent and independent system of vectors. बता सकता है कोई? बता दूं? देखो, अगर एक भी लैम्डा, मिनिमम एक लैम्डा नॉन जीरो है, से लैम्डा 1 इज नॉट इक्वल टू 0, कोई सा भी एक लैम्डा ले सकते हो नॉन जीरो, लैम्डा 1 इज नॉट 0, तो व्हाट विल हैपन, बाकी सारी टर्म्स को आई कैन ट्रांसफर टू राइट हैंड साइड एंड डिवाइड बाय लैम्डा 1 बिकॉज लैम्डा 1 इज नॉट 0। तो क्या हो जाएगा, a1 would have been expressed as a linear combination of all other vectors। मैंने बोला था लीनियर कॉम्बिनेशन का डेफिनेशन ध्यान रखना है। जो भी लैम्डा जीरो नहीं है उस टर्म को इधर रखो, बाकी सारी टर्म्स को राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करो और उसके कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो जो कि जीरो नहीं है, तो वो वाला वेक्टर बाकी सारे वेक्टर्स के फॉर्म में क्या हो गया, बाकी सारे वेक्टर्स के लिए की फॉर्म का लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया। दैट मीन्स दिस सिस्टम इज लीनियरली डिपेंडेंट। बट इफ ऑल द लैम्डास आर जीरो, सारे लैम्डा जीरो हैं, तो वेक्टर का क्या फर्क पड़ेगा, वेक्टर पे कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। ठीक है, 0 + 0 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स दे आर लीनियरली independent system of vectors। That is how we define the linearly dependent and independent system of vectors। आगे समझ में? ठीक है, अब there are 5 important theorems जिसके ऊपर की सारा वेक्टर अलजेब्रा एक तरह से बेस्ड है। So those theorems are very very important। Theorems, the very first theorem is
if two vectors are collinear, one can be expressed as a scalar multiple of the other or linear combination of the other. Theorem first. If A and B are collinear, means parallel, then any one of them can be written as a scalar multiple of the other vector. Scalar multiple of the other vector. ठीक है? How come? अगर दो वेक्टर्स कोलिनियर है तो किसी को भी दूसरे वाले वेक्टर का स्केलर मल्टीपल की फॉर्म में लिख सकते हो, या बोल सकते हो कि A इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर B. कैसे बताओ? नहीं, डायरेक्शन सेम क्यों होगा? हाँ, तो दोनों ऑप्शन लेने ना, सेम नहीं बोलने. हाँ, फिर से एक बार. हाँ, तो वही तो बोलना है ना कि स्केलर मल्टीपल क्यों लिख सकते हैं अपन. देखो, अगर सेम डायरेक्शन में हो गया तो लैम्डा पॉजिटिव हो जाएगा, और ऑपोजिट डायरेक्शन में हो गया तो लैम्डा नेगेटिव हो जाएगा. बस इतना ही फर्क पड़ेगा. एक बात तो, आइदर दिस और दैट. ठीक है? तो लैम्डा कुड बी पॉजिटिव और नेगेटिव, इट डजंट मैटर, दोनों में से कुछ भी हो सकता है. सेकेंडली, जब दोनों पैरेलल हैं तो मैग्नीट्यूड का तो डिफरेंस आ रहा है. ठीक है? ऑफ कोर्स मैं नेगेटिव पॉजिटिव की बात कर चुका हूं ऑलरेडी. तो कुछ ना कुछ टाइम्स ही तो होगा ये. सपोज बी ए का 0.5 टाइम्स हो सकता है, बी ए का √2 टाइम्स हो सकता है, बी ए का 7.33957 कुछ टाइम्स हो सकता है. कोई ना कोई टाइम तो होगा ही होगा ना. ठीक है? एग्जैक्टली व्हाट इज रिटन हियर. और A इज सम मल्टीपल ऑफ B. एक ही बात है. ठीक है? Therefore, if two vectors are collinear, any one of them can be written as a scalar multiple of the other vector or a linear combination of the other vector. पक्का? Can I say that A and B are linearly dependent vectors here? Are they linearly dependent vectors? Why? हाँ? तो नहीं, वो तो लीनियर कॉम्बिनेशन हुआ. A is linear combination of B या B is linear combination of A, ऐसे बोल सकते हो. ठीक है? अब लीनियरली डिपेंडेंट क्यों हुआ वो बताना है. सर हाँ, सर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 into A वेक्टर माइनस लैम्डा B वेक्टर इज इक्वल टू 0 एंड 1 और लैम्डा एटलीस्ट नॉन जीरो हो सकते हैं. मतलब इन दोनों में से कोई भी नॉन जीरो हो सकता है. अरे 1 नॉन जीरो है ना. हाँ सर, मतलब 1 नॉन जीरो है सर. सॉरी सर. एटलीस्ट 1 नॉन जीरो हो सकता है. 1 बोल भी रहा है फिर भी कह रहा है नॉन जीरो हो सकता है. सॉरी सर. अरे 1 नॉन जीरो हो गया ना. लैम्डा 1 इंटू A1, पहले लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का डेफिनेशन क्लियर करो. लैम्डा 1 A1 प्लस लैम्डा 2 A2 टिल लैम्डा n इज 0, ऐसे समझना है. सारे लैम्डा जीरो हो गए तो लीनियरली इंडिपेंडेंट, अगर एक भी नॉन जीरो हो गया तो लीनियरली डिपेंडेंट. बस वो अप्लाई करना है. तो यहाँ पर लैम्डा b माइनस ए इज इक्वल टू 0 मैंने लिख दिया. तो b अगर लैम्डा जीरो भी हो जाए तब भी a का कोफिशिएंट तो कितना आ रहा है, तो लीनियरली डिपेंडेंट हो ही गया. ठीक है? नेक्स्ट सेकंड थ्योरम.
if A and B are two non-zero non-collinear vectors such that lambda into A plus mu into B is 0, then this must imply, or this will imply, lambda as well as mu both are 0. If A and B are two non-zero non-collinear vectors such that lambda into A plus mu into B is 0, then definitely lambda is 0 as well as mu is 0. How to prove it? कैसे प्रूव करेंगे इसको? Any approach? सर सर क्योंकि ए एंड बी जो हैं वो नॉन जीरो भी हैं, नॉन कोलिनियर भी हैं, तो फिर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर का सम कभी भी जीरो नहीं आ सकता। लेकिन अगर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर जीरो आ रहा है तो दैट डेफिनेटली इम्प्लाइज कि लैम्डा एंड म्यू दोनों जीरो होंगे, तभी हमें रिक्वायर्ड जीरो मिलेगा। ऐसे तो सारी थ्योरम्स प्रूव कर देगा यार, तुम ऐसे की इंट्यूशन से। ऐसा हो नहीं सकता, इसलिए ऐसा होगा। फिर तो कुछ प्रूव ही नहीं करना बचता है कभी भी। ऐसे नहीं होता है। और कोई नहीं? देखो, कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड लगाएंगे। हमने सपोज कर लिया कि लैम्डा इज नॉट इक्वल टू 0। लेट लैम्डा इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अगर लैम्डा 0 नहीं है, क्योंकि ये तो मुझे गिवन रिजल्ट है ये वाला, तो सिंस लैम्डा इंटू ए प्लस म्यू इंटू बी इज 0 implies वेक्टर ए कैन बी रिटन एज माइनस म्यू इंटू बी। लैम्डा इज स्केलर, उसको नीचे ले जा सकते हैं, वेक्टर को नीचे नहीं ले जाना है। डिवीजन बाय वेक्टर्स इज नॉट अलाउड, इज नॉट डिफाइंड एक्चुअली। तो अब क्या हुआ यहाँ पे? a is equal to minus mu upon lambda into b. What does it mean? Theorem 1. हाँ, linearly dependent. Sir, A vector is parallel to B vector. हाँ, collinear. A and B are parallel or collinear. Whereas we had taken non-zero, non-collinear. So this is a contradiction to our assumption or the given thing. Therefore, lambda has to be 0. ठीक है, exactly in the similar manner we can prove mu to be 0. वही mu को नॉन जीरो सपोज कर लो और उसके बाद आगे प्रोसीड करो। ठीक है, आगे समझ में? थ्योरम 3, if vector r is coplanar with two
नॉन जीरो नॉन कोलिनियर vectors A and B, then R can be uniquely expressed as a linear combination, of vectors A and B. ठीक है, थ्योरम समझ में आ गया? दैट इज व्हाट आई वांट टू से, R is equal to lambda into A plus mu into B. This is what I want to say. A और B कोई भी दो नॉन जीरो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स हैं और R उनके साथ कोप्लेनर है, तो हम R को उन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन लिख सकते हैं एंड दैट एक्सप्रेशन वुड बी यूनिक. यूनिक का मतलब हो गया इफ R is equal to 2A plus 3B then it has to be 2A plus 3B. It cannot be written as 5A plus 7B or anything like that. ठीक है, तो इसमें दो पार्ट हैं थ्योरम में. एक पार्ट तो ये है कि हम R को ऐसा लिख सकते हैं, पहले तो ये प्रूव करना है. फिर सेकंड पार्ट है कि वो एक्सप्रेशन यूनिक होगा, ये भी प्रूव करना है. दो पार्ट में हमें थ्योरम को प्रूव करना है. ठीक है, सोचोगे या बता दूं डायरेक्टली? यस, एनीवन? नहीं करें फिर डिस्कस. ओके, दो वेक्टर्स ए और बी हैं, दोनों नॉन जीरो नॉन कोलिनियर हैं. इसका मतलब उनका मैं इनिशियल पॉइंट सेम ले सकता हूं इन दिस वे, से दिस इज ए एंड दिस इज बी. ठीक है, अगर वो कोलिनियर होते तो फिर बी को मैं इस तरह से नहीं ले सकता था. बी वुड हैव बीन पैरेलल टू ए, दैट मींस ऑन द लाइन ऑफ ए. इसलिए नॉन कोलिनियर होना जरूरी हुआ. नॉन जीरो क्यों है वो तो पता ही है, नहीं तो फिर लिखना ही क्या है. ठीक है, अब वेक्टर आर है स्पेस में, कहीं पर भी आर है स्पेस में. इन दोनों वेक्टर्स के साथ कोप्लेनर है. ऑफ कोर्स टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर एज वी डिस्कस्ड अर्लियर. तो ये तो हमेशा एक ही प्लेन में होंगे ही होंगे. नहीं भी है तो उनको सेम प्लेन में लाया जा सकता है. उसी प्लेन में हम डिस्कस कर रहे हैं. अब ये वेक्टर आर है जो कि इस प्लेन के पैरेलल है. हमने इसको शिफ्ट किया, इस तरह से शिफ्ट किया इस प्लेन में, एंड देन इसका इनिशियल पॉइंट भी सेम बना दिया. ठीक है, से दिस इज वेक्टर आर. करेक्ट? आगे समझ में यहां तक है ना? अब यहां से मैंने इसको आगे ऐसे एक्सटेंड किया और बी के पैरेलल भी एक वेक्टर बना दिया इस तरह से.
this is vector A, so this can be considered as lambda times of A. कोई ना कोई मल्टीपल होगा A का, मे बी छोटा मे बी बड़ा, नेगेटिव पॉजिटिव डजंट मैटर, ठीक है। ये B है तो ये वाला जो वेक्टर है वो B का कोई ना कोई मल्टीपल होगा, उसको मैंने म्यू इंटू बी बोल दिया। सो देयरफॉर R इज इक्वल टू लैम्डा इंटू ए प्लस म्यू इंटू बी, ये हमने प्रूव कर दिया, एक पार्ट प्रूव कर दिया। आगे समझ में? दूसरा पार्ट प्रूव करने के लिए लेट अस सपोज R इज इक्वल टू लैम्डा 1 इंटू ए प्लस म्यू 1 इंटू बी। वन मोर एक्सप्रेशन इज पॉसिबल, देन दोनों को इक्वेट करेंगे, लैम्डा इंटू ए प्लस म्यू इंटू बी इज इक्वल टू लैम्डा 1 इंटू ए प्लस म्यू 1 इंटू बी, ठीक है। एक साइड में ट्रांसफर करेंगे तो लैम्डा माइनस लैम्डा 1 इंटू ए प्लस म्यू माइनस म्यू 1 इंटू बी इज इक्वल टू 0 हो गया। A and B are what? Non-zero, non-collinear, non-collinear as well, ठीक है। थ्योरम 2 में क्या पढ़ा था हमने? थ्योरम 2, if A and B are two non-zero, non-collinear such that lambda into A plus mu into B is 0, that means lambda is 0, mu is 0. That means coefficient of A has to be 0 and coefficient of B has to be 0 from theorem 2. Therefore, lambda minus lambda 1 is 0 and mu minus mu 1 is 0, implies lambda 1 is equal to lambda, mu 1 is equal to mu. So ultimately R का वैल्यू वापस वही आ जाएगा, lambda into A plus mu into B. आए समझ में? पक्का? Anyone has any doubt here? नहीं, काफी देर से वीडियो चल रहा है तेरा, क्या बात है? अब सर वो पापा आ गए थे ना तो उनका वाला ले लिया था, पहले मेरा खत्म हो गया था। चलो ठीक है, ओके, आज के लिए इतना ही करेंगे। मैं सोच रहा था कि 5 थ्योरम करा दूंगा बट होगा नहीं कंप्लीट आज, है ना, तो नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे। आई मीन ऑफ कोर्स वो तो होंगे ही एज मच एज पॉसिबल। दो क्लास में भी प्रोबेबली शायद ना हो पाए, मे बी 3 क्लासेस, उसके बाद प्रॉब्लम्स होंगी, ठीक है। किसी को कुछ कहना है, कुछ पूछना है? पक्का? ठीक है। एनसीईआरटी में से एक्सेप्ट मिसलेनियस एग्जांपल एंड मिसलेनियस एक्सरसाइज, डू कंप्लीट all the problems of probability. That's all. Thank you, sir. Okay, bye bye. Thank you, sir. So Thank you, sir. Bye.